हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान के अनुच्छेद 139, 139 ए, 140। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 139, 139 ए एंड 140। चलें स्टार्ट करें। 139 क्या कहता है? 139 आर्टिकल सेज conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs। क्या कहता है? conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs। Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them for any purposes other than those mentioned in clause 2nd of article 32। 139A says confer 139A transfer of certain cases। Number 1, where cases involving the same or substantially the same the question of law or pending before the Supreme Court and one or more high courts, or before two or more high courts and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney General of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or the High Courts and dispose of all the cases itself, provided that the Supreme Court may, after the determining the said questions of law, returns any case so withdrawn together with a copy of its judgment or such question to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. Number 2, the Supreme Court may, if it deems it expedient so to do for the ends of justice, transfer any case, appeal or other proceedings pending before any high court to any other high courts or any other high court। 140 article says ancillary powers of Supreme Court. Ancillary powers of Supreme Court. Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers or inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the court for effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution। अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 139। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 कहता है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों में से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। जो 139 अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं, रिट्स निकालने की शक्ति प्रदान करता है। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, याचिकाएं हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट।
या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। 139 का कुछ मामलों का अंतरण। नंबर 1, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सार्थक समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगवा सकता है या मंगवा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। तो ये जो शक्तियां हैं किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। नंबर 2, यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी के असंगत न हो, जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के रिट निकालने की जो शक्ति है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं जिनको निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। और मैंने इसमें जो वर्णन किया है, जो अनुच्छेदों को पढ़ा है इनका, जिसमें वर्णन किया गया है कि क्या क्या इनको शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को, इसके बारे में मैंने बात की है। कल पढ़ूंगी 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का। और उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। तो कल मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। हाँ, मेरे जो चैनल है ना संध्या मैम के नाम से, वो आपका अपना चैनल भी है, मेरा ही नहीं है, आपका भी है। जितना मेरा दायित्व है उतना उससे बढ़ के आप लोगों का भी है, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, वायरल करें वीडियोज़ और जन जन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि लोग संविधान के बारे में जानें कि वीडियो किसके बारे में है, कौन सा टॉपिक है, क्या है संविधान, इसके बारे में जनता जानेगी तो जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करेगी? सबसे पहले संविधान खोजेगी, संविधान देखेगी कहाँ मिलता है, कहाँ से खरीदें, और वहाँ से पढ़ेगी, खरीद के और जानेगी और उस नॉलेज को घर घर क्या करेगी? प्रोवाइड करवाएगी। कौन? हमारी जनता या हमारे लोग। इसलिए भारत के लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, तभी जागरूकता आएगी। जागरूकता के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इतना पढ़ना पड़ता है कि हमारी जो आईज हैं, आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए पढ़ते रहना ज़रूरी है, पढ़ेंगे तभी इंसान अच्छे बनेंगे। तो संविधान पढ़ने से कोई कंजूसी ना करे, संविधान ज़रूर पढ़ें, 1-2 घंटे निकाल के, तभी अच्छे नागरिक बन पाएंगे।
ठीक है, आप लोगों से मेरी अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़। तब तक के लिए जय भीम।